water and finds its way into every heart. Our guests today are a remarkable father-son duo from the illustrious Banaras Gharana, carrying forward a rich musical lineage that spans over 350 years. Padma Bhushan Pandit Sajan Mishra ji and his son Swaransh Mishra ji, who represent the sixth generation of Indian classical music. Pandit Sajan Mishra ji needs no introduction. He is himself an epitome of Indian classical music. Along with his highly revered elder brother, Padma Bhushan late Pandit Rajan Mishra ji, they have earned the highest accolades, including the Padma Bhushan, the Sangeet Natak Academy Award, Tansen Award, Omkar Nath Thakur Award, Kashi Gaurav, Yash Bharati Award, among others, for their exceptional contribution to Indian classical music globally. Swaransh Mishra ji is blessed to have been trained by both his uncle and father. Besides being a born artist with a good aesthetic sense for both classical and semi-classical forms of music, he enjoys the privilege of inheriting the legacy of his maternal grandfather, the legendary Padma Vibhushan late Pandit Birju Maharaj. Swaransh Mishra ji is a multifaceted musician, a lyricist, music composer, and a captivating orator that truly justifies the lineage that he represents. It is simply impossible to summarize the quantum of their work and achievements in one introduction. But I can briefly say that even today, they both continue to mesmerize audiences around India and across the world with their sublime performances. They are here today to enlighten us on their journey and the inherent relationship between water and music that is not restricted only to words, sounds, and emotions. Music can create rainfall, light lamps, and even heal. And it is not without reason that renditions are often described as soulful. Welcome to Waterlogs, and I'm your host Preeti Agarwal with my co-host Seema Agarwal. It is our utmost privilege and an honor to have you both on Waterlogs today. Thank you. अगर बिल्कुल शुरुआत से शुरू करें तो both of you were born in a family immersed in music and grew up जहाँ पे हर तरफ संगीत का माहौल था। आपकी दहलीज पे कदम रखते ही एक तानपुरे की गूंज सुनाई देती थी और आज भी वैसा ही है। तो अब सवाल ये है कि the learning curve has spanned in generations. तो संगीत की तालीम भी हर जनरेशन के हिसाब से उसमें तब्दीली आई है, उसमें भी एक एवोल्यूशन हुआ है। तो पंडित जी, आपकी लर्निंग इयर्स वर्सेस स्वराज जी के लर्निंग इयर्स में व्हाट हैज बीन द डिफरेंस? नहीं, बहुत बड़ा फर्क आया है। एक्चुअली क्या है कि उस जमाने में जब हम लोग बचपन में थे, तो उस जमाने में 3 चीज हुआ करता था जीवन में: खाना, गाना, खेलना। और आज के जीवन में इतने ज्यादा व्यस्तता हो गई है लोगों की, जरूरतें बढ़ गई हैं, उन जरूरतों के हिसाब से लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं। और हम लोगों के जीवन में सब कुछ टाइम टेबल बनता था, टाइम टेबल के अनुसार हम अपने जीवन को जीते थे। सुबह 5 बजे उठा दिए जाते थे। कबीर दास जी का मंदिर हमारे घर के बगल में, उनका बेल बजता था, मेरी माँ उठा देती थी। और वो एक हमारे गुरु जी की रचना थी, मोहन जागो घोर उठे। तो उससे वो शुरुआत करके हम लोगों को अलसाए हुए हम दोनों भाई पढ़े लगते थे, हिला के हम दोनों को उठा दिए करते थे। और फिर उसके बाद में 15-20 मिनट में हम लोगों को फ्रेश होना होता था। फिर उसके बाद में पिताजी के ट्रेनिंग में बैठ जाते थे, तो 1-1.5 घंटे का वो ट्रेनिंग होता था। फिर उसके बाद स्कूल जाना होता था। स्कूल से आते थे तो फिर
दोपहर में खाना खा के 1 घंटे का विश्राम, फिर 4 बजे से 5:30 बजे तक प्रयास करना है। मुल्तानी है, मधुबनी है, पलासी है, पड़ती है, ऐसे ऐसे रागों का। और 5:30 बजे ठीक छुट्टी मिल जाती थी, हम लोग ग्राउंड में चले जाते थे। तो 1-1.5 घंटा वहाँ खेलने का होता था। फिर उसके बाद में रात में हम लोगों को बैठाते थे 7:30-8 बजे, तो वो 10:30-11 बजे तक शिक्षा करती थी। तो मतलब एटलीस्ट आप समझ लीजिए कि 5-6 घंटे का शिक्षा चलती थी। फिर हायर एजुकेशन में आ गए तो थोड़ा सा टाइम और मिलने लगा, तो उसमें फिर 8 घंटे का रियाज हो गया। तो उस तरीके से हम लोगों को, और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे गुरु पिताजी पंडित हनुमान मिश्रा जी ऐसे शख्सियत थे कि वो 2 घंटा 2.25 घंटा के ऊपर गाने नहीं देते थे। फिर उसके बाद में 1 घंटे का उनका लेक्चर हुआ करता था उस राग के बारे में, उसकी क्या पर्सनालिटी है, राग किस तरीके से देखा जाता है, राग तुमसे कितना बड़ा है, क्योंकि अनंत सागर की तरफ होता है और हम एक छोटे से जीव के समान होते हैं। उन सब विषयों पे वो बड़ी गूढ़ दृष्टि से हम दोनों भाइयों को समझाते थे, और उसी का नतीजा ये है कि थोड़ी समझ उनके बदौलत आया। सबसे बड़ी बात तो ये आई कि शांति आई। उनका यही कहना होता था कि देखो ये फाइन आर्ट है, ये कोई मजदूरी नहीं है। तो फाइन आर्ट कितना फाइन हो सकता है इसके विषय में सोचना शुरू। स्वर है वो ईश्वर स्वरूप है, अगर स्वर में ई लगा दिया जाए तो वो ईश्वर हो जाता है। तो जब वो इतना बारीक है, आप स्वर को भी नहीं देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, ईश्वर को भी नहीं देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। तो इन सब बातों से जीवन में दृष्टिकोण बदल दिया उन्होंने हम दोनों भाइयों का, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे पिता और गुरु के सानिध्य में हमारी शिक्षा हुई। स्वराज, क्या आज भी यही डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस तो नहीं कहूँगी, ये तो बहुत अच्छा तरीका काटा है, क्या यही डिसिप्लिन आज भी मौजूद है जो उस जमाने में था? जो डिसिप्लिन तो मौजूद है, हम करते हैं कि नहीं करते हैं वो अगर मैं अपनी पर्सनल में सिर्फ अपनी ही बात कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा रिग्रेस ट्रेनिंग से तो मैं नहीं गुजरा और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस और डांट फटकार से भी नहीं गुजरा, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। और आप लोग जब भी ट्रैवल करके आते थे हमेशा एक ज़रूर क्वेश्चन जरूर होता था पापा का कि हाँ भी कितना रियाज कर दोगे, तो बहुत कम हुआ करता था, क्योंकि शुरू से एक मेरा डायरेक्शन टुवर्ड्स म्यूजिक जो था वो राइटिंग फोकस ज़्यादा था, देन वो कंपोजिंग में था। तो रागों का उतने ही राग को, सर्टेन लिमिटेड रागों को मैंने पहचाना जिससे मेरी कॉम्पोजिशंस को हेल्प हो सके। हाँ, एक दौर बीच में जरूर आया था जब मेरा डेब्यू हुआ था संकट मोशन में, जहाँ से पिताजी लोग भी स्टार्ट हुए, तो उसके पहले एक स्ट्रेस तो जरूर बना। तो उसके लिए मैं हमारे देहरादून वाले घर में जाके मैंने 1-1.5 महीना थोड़ी सी साधना करी। शायद आज भी हल्का फुल्का जो भी मेरा गला चल रहा है उसमें भी इस तरीके का डिसिप्लिन मैंने खुद कोशिश किया था मेंटेन करने का, कि मैं सुबह उठ के 1-1.5 घंटा पहले खरच का रियाज करूँ, फिर उसके बाद आराम से अपना एक ब्रेकफास्ट के बाद फिर 2-3 घंटे के लिए और फिर दोपहर में आराम, फिर शाम को थोड़ा सा, मेरे पास एक प्यारा सा डॉग भी था वहाँ पे लोगों ऐसे में तो उसको टहला घुमा के लाता था, तो फिर मैं बैठ के थोड़ी देर जाता था। फिर रात को बहुत अच्छे से 1-2 घंटे का सेशन रियाज एज अ परफॉर्मेंस रियाज, तो वो बड़ा फर्क पड़ जाता है उससे। आप एक तरफ खाली सुरों की साधना कर रहे हैं और एक तरफ आप बंदिशों को लेके बैठ रहे कि आपको किस तरीके से उसको गायकी करना है। ऑब्वियसली पापा ने बोला ही हुआ था, बताया था कि इस तरीके से अपना फोकस रखना, और फिर रात को एक कोई भी अच्छा संगीत सुन के सो। ऑन दैट कैन बी एनी आर्टिस्ट, इसमें कभी ये नहीं था कि हमें ही सुनो या ऐसा करो। तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम हरि जी के मार्गों को बहुत सुना। मतलब 1-1.25 महीने में मैं देहरादून में था, तो मुझे लगता है कि मैं 20 दिन तो अच्छे से, और वो इतना संमोहना वाली चीज है, इतना मैजिकल मार्गों से उनका कि मैं सुनता ही रहा उसको रात को सुन के सोता। इसीलिए शायद वो मेरा पसंदीदा राग है। तो हैंड इन हैंड इट्स गोइंग गुड।
What a beautiful thought, ना कि म्यूजिक के साथ ही सोते भी म्यूजिक के साथ है क्या? I mean, how beautiful is that? जी That's it. A good musician always eats, sleeps, drink music. Totally, totally. अच्छा, in music, words kind of intertwine, they flow like water, turning and twisting into like a flawless melody that triggers emotions in the listeners. definitely. So, Pandit ji, as a singer, and especially an Indian classical singer, आप इस फ्लो के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं और कैसे आप मुखड़े के एक ही बोल को लेकर अलग अलग अंदाज में बहते चले जाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके शरीर में 75% वाटर है। बिल्कुल। तो वो वाटर का फ्लो आपके जीवन में बना होता है, तो जल ही जीवन है। बिल्कुल। और जो हमारे शब्द होते हैं, अब जैसे जमुना जल भरन नाहि देत कन्हाई, एक शब्द है, और उसमें ये आपका इम्प्रोवाइजेशन ये होना चाहिए कि हमारे पिताजी बोलते थे कि सिर्फ एक राधिका की बात नहीं हो रही, राधा की बात नहीं हो रही, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उनकी 16 गोपियां थी, तो 16 तरीके से इस शब्द को कैसे कहो, क्योंकि हर गोपी अपने अंदाज में उस बात को कह रही है। तो वो इम्प्रोवाइजेशन का जो तरीका था, तो वो फ्लो बनता है। कोई शिकायत कर रहा है, कोई बहुत ही मधुरता से बोल रहा है, तो वो फ्लोइंग जो है वो वाटर के समान ही होना चाहिए। और कहा जाता है कि अगर गंगा में आपको तैरने भी नहीं आता है, आप अपने आप को शिथिल करके स्टिल करके छोड़ दीजिए। अच्छा। तो गंगा जो है किनारे में ले आकर लगा देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत पानी का महत्व। और आप अगर जल की तरह बनते हैं तो आप हमेशा नीचे जाएंगे, पानी का स्रोत जो है वो ऐसे हमेशा नीचे, तो इससे क्या है कि आपका अहंकार कभी होगा ही नहीं। तो जल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जीवन का, और जल की तरह शीतल होना चाहिए, जल की तरह आपका नेचर होना चाहिए, जल की तरह आपको अपनी बातों को कहने का तहजीब तमीज होनी चाहिए। यही आपका जुबान है, ये स्वर है। अगर इस स्वर को आपको बिगाड़ना है, किसी से गाली गलौज करते हैं तो स्वर बेसुरा हो गया। अब बेसुरा हो जाएगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, और स्वर में बात करेंगे तो प्रेम पैदा होगा। आपका ये नाड़ी है, ये हार्ट बीट है, ये लय है, इसको अगर आप सुचारू रूप से देखते रहते हैं, वाचफुल चलते हैं, वाचफुल बात करते हैं, लय में बात कर रहे हैं, तो आपका बढ़िया है। अब लय बिगड़ेगा तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये दो चीजों से पूरे जीवन के सार को समझा जा सकता है, बशर्ते आप अंदर झांकना शुरू करें कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं, क्योंकि मेरे अंदर में सारा कुछ विराजमान है जो ब्रह्म में है। और नेचर के साथ में आप कैसे मिलते हैं, संगीत जो है वो नेचर का चीज है, प्रकृति की चीज है। तो प्रकृति के साथ अगर आपको जीना आ गया, आप देखिए कभी हिल्स पे जाती हैं तो हिल्स को देख के ऐसा लगता है कि क्या खूबसूरत है। वहां पे आपका ईगो, अहंकार खत्म हो जाता है, क्योंकि आपसे ऊंचा चीज है कि नहीं। तो इसलिए नेचर में जाके जीने का, हम दोनों भाइयों को, परिवार को भी हम लोग हमेशा ले जाते थे। हम लोग जंगल में बहुत जाते थे, आते थे। इधर बीच में 3-4 साल से नहीं हो रहा है, क्योंकि भैया नहीं है हमारे, नहीं तो हम लोग कॉर्बेट वगैरह बहुत सारे, बांधवगढ़, कान्हा, सरिस्का, ये जो जंगल्स हैं उसमें ज्यादा जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ नेचर है, वहाँ शांति है। तो जब आपके हृदय में शांति आ जाएगा तो आपके संगीत में भी शीतलता आ जाएगी, और शीतलता आते ही आप जल समान हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। तो जल का ये महत्व है। ये तो क्या है कि उसका बहुत ज्यादा रिदमिक पैटर्न नहीं है, जो फ्लो जो आप कहने की बात कर रही हैं, और कहीं ना कहीं हमारा शास्त्रीय संगीत भी जो है वो बहुत ही कट टू कट बेसिस पे चलने वाला संगीत नहीं। देयर आर पार्ट्स ऑफ इट जिसमें सरगम और ताली होती है,
लेकिन मेजर पार्ट जो हमारा जो मेन 48 बीट्स का विलंबित ख्याल हम लोग करते हैं, उसको अगर आप सुने और जिस तरीके से हमें सिखाया गया, तो हमेशा महसूस किया वो बीट टू बीट चलने वाली बात नहीं है, वो बीट के साथ फ्लो करने वाली बात है। अगर हम उसको फ्लो नहीं करेंगे तो उसके अंदर वो एटमॉस्फेयर और ऑरा क्रिएट होगा। तो वो कहीं ना कहीं तो हर चीज मिला ही हुआ है, वो 5 तत्व हमारे अंदर, तो उसके हिसाब से। और एक बड़ी अच्छी बात पिताजी ने बचपन से सिखाई कि रमता जो भी बहता, और उसको डिकोड ऐसे किया गया कि जिस तरीके से कंटेनर में जैसे भी हो जाओगे पानी की तरह, तो किसी भी माहौल में तुम घुल मिल जाओगे। तो कहीं ना कहीं वो स्टेज पे भी इस तरीके की बातें होती हैं, कभी बहुत अलग क्राउड होता है, कभी बहुत शांत क्राउड होता है, तो वो बड़ा इफेक्ट करता है, ये सारी बातें ज़हन में रहती हैं। Very nice. So Rajesh, you're living in a house which is an inspiration gallery. But you as a lyricist, as a composer, you must be constantly drawing inspiration to get that spark of creativity. So you need that. So just tell me, you enjoy being on mountains versus a beach. What inspires you more, better? And please tell us something about this. Yeah, so this technically has 2 different experiences altogether. Okay. Earlier, when I had a lot of time, being in college, I used to travel a lot for myself and get inspired from various places. एक शायद गरीब बच्चे को भी देख के इंस्पिरेशन मिल जाती थी, और कहीं कुत्ता बिल्ली को भी देख के मिल जाती थी। अब ऐसा एक पार्ट आ गया है कि इन सारे एक्सपीरियंसेस को आपको अंदर महसूस करना पड़ता है। तो मुझे एक बहुत गहरी बात समझ में आई कि ये पहाड़ों पे जाना या समुद्र के पास जाना, एक बीइंग आर्टिस्ट, उसके मन के अंदर जो पहाड़ है, उसके मन के अंदर जो बीचेस है, उसको किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकता है और शब्द निकाल सकता है, वो ज्यादा जरूरी है। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें इंस्पायर करती है टू राइट, टू कंपोज। स्पेशली हम पहाड़ पे जाते हैं तो धुन कुछ अलग सी हो जाती है, मतलब एक बड़ा नेचुरल फील है कि अगर हम माउंटेन्स पे तो हमें पहाड़ी राग वो उस तरीके की तेरे मेरे होठों पे इस तरीके की ट्यून चलेगी। अगर आप कहीं गोवा या उस बीच साइड पे चले गए तो कुछ स्पेनिश ट्यून्स आपके अंदर चलने लगेंगे, बड़ा बाय डिफॉल्ट है। Definitely it works, but it is very important for an artist कि उसके मन के अंदर ये सारे experiences कैसे चल रहे हैं। तो अब आजकल मन का ही माला फेरा जा रहा है। Eventually पूरा नेचर हमारे अंदर भी वही नेचर जी, है, बिल्कुल। वही सब है। तो बट आई लव बोथ। मैं आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि मुझे पहाड़ ज्यादा पसंद है कि मुझे बीचेस ज्यादा पसंद दोनों ही पसंद है। है। मुझे आई लव मुझे धरती सिटी दी लाइफ बहुत आई लव इट। There is inspiration in everything. या 100% ज्यादा है। इनफैक्ट मैं तो यही कहूँगा, वहाँ आपकी सोच में है, यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष। एक सवाल और। जी। You as a lyricist, how would you describe chap chap या tip tip in your song, you know, to bring out the desired emotion of water, you know, to the for the listener? जी। तो कैसे करेंगे, दोनों के एग्जाम्पल दीजिए ना। देखिए, ये जो शब्द आपने कहे हैं, ये साउंड से बने हुए शब्द हैं। जैसे आप पानी के ऊपर जब जंप करते हैं तो उसमें से छप की आवाज आती है, या कहीं कोई टपकता हुआ बूंद है तो वो टिप 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 का आवाज देगा। ऐसे शब्द बना है कि खटखट, तो किसी ने दरवाजे पे नॉक किया तो वो खटखट है, तो वहां से इसे डेराइव्ड वर्ड्स हैं। इनका कोई ऐसा बहुत हिस्टोरिक भी नहीं है आप किसी भी तरीके से कि अरे हमारे घर में बड़ा ना एक फनी सा वर्ड यूज होता है, मैं बताऊंगा आप सभी को, ले दो करके। आई थिंक इट्स डिराइव्ड फ्रॉम नेपाल से कहीं से आया है। So it's like a very gooey kind of a jelly kind of a thing. Okay. तो jelly kind of a thing को ले दो कहते हैं। तो शब्द से आपको समझ में आ जाता है कि यार ये तो बड़ा गुदगुदा था। तो गुदगुदा तो चलो एक शब्द ही है, तो उसकी वजह से। और being a lyricist, मैंने इस तरीके की चीज गानों में इस्तेमाल तो करी है, लेकिन अभी जैसे एक महाराज जी के लिए मैंने एक पोएट्री लिखी थी
जिसमें मैंने उनके पैरों का मेटाफोरिकली यूज किया था कि जब वो बिना घुंघरू के डांस करते हैं तो वो किस तरीके से सुनाई देती है। तो वो मेटाफोर लाइन मेरे को बड़ा अच्छा लगा था और बड़े टाइम से मैं उसको डिकोड करना चाहता था, एंड दैट वाज एडेड लेटर टू माय पोएट्री। हालांकि वो 108 लाइन की कविता है, 5 अलग लय में है, सुनाना बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा एक शब्द लिखा कि बिन घुंघरू के भी था तुम्हारी ऐसी धुन साथे, बूंदन बारिश धरा पे तत्कार कर लागे। कि पैरों की आवाज ऐसे पड़ रही है कि जैसे बारिश की बूंदें जब जमीन को हिट करती हैं, वो थक्कन जो है उनकी, वो जो प्यारी सी एक मिठास आती है, तो उनके पैर वैसे साउंड करते हैं जब वो बिना घुंघरू के डांस करते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं, और आप सब गुरुओं का ही है, सब कुछ नया नहीं, जो भी करते हैं जस्ट ओनली डिस्कवर। तो जब पानी की बात करते हैं या म्यूजिक की एक साथ बात करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे मन में हमेशा आता है, दैट इज जलतरंग। जी। तो पंडित जी, आप इस एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ बताइए, और ऐसा क्यों है कि आजकल ये इंस्ट्रूमेंट इतना कॉमनली यूज नहीं हो रहा है? एक्चुअली अभी जो ये सिंथेसाइजर ये आ गया, इसमें सब कुछ डाल दिया उन्होंने। हाँ। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उसमें नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में। और जलतरंग बहुत ही पुराना इंस्ट्रूमेंट है, काठ तरंग भी हुआ करता था, लकड़ियों के ऊपर भी बजाने की कला हुआ करती थी, जलतरंग की तरह ही साउंड करता था। तो वो लकड़ी उस तरीके का ट्यून अप करना पड़ता था। अब जलतरंग के तो प्याले हुआ करते थे, तो 12 सुर के अलग अलग लेवल के पानी से उसको सुर किया जाता था। कितना कम करना है, कितना, उसके लिए बहुत अच्छा ईयर भी होना चाहिए। और दूसरा क्या हुआ कि इतना सारा प्याला लेके सफर करना, और वैसे आर्टिस्ट नहीं होने, क्योंकि वो डाइंग, मतलब वो खास करके एक तरह से डाइंग इंस्ट्रूमेंट में गिनती होने लगा। तो धीरे धीरे लुप्त हो गया। नहीं तो आज से 20 साल 25 साल पहले तक कुछ अच्छे जलतरंग वादक थे। हाँ, आई थिंक मिलिंद कुलंकर अभी एकमात्र वो पूना का लड़का है मिलिंद, इस समय वो मेंटेन किया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत बजा रहा है। तो परकसिव ट्यून इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, अब उसकी वजह से क्या देखिए, क्या है कि बहुत सारंगी, पखावज, शहनाई, ये सब धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे, लेकिन ध्रुपद लुप्त हो रहा था। तो ध्रुपद फिर से सर्वाइव कर गया, अब सारंगी सर्वाइव कर रहा है। धीरे धीरे पखावज आना तो आपको इसी घूम के साइकिल में ही आना है। एक दिन हो सकता है कि मिलिंद की वजह से या और 2-4 आर्टिस्ट से जो जलतरंग बजाते हैं थोड़ा और पॉपुलर हो जाए। पहले हार्प भी बजाया करते थे, फॉरेन कंट्री में तो अभी भी बजाते हैं। तो यहाँ पे भी सारी विधाएं थी। आप देखिए, कोई पुरानी मूवी देखेंगी तो उसमें इंद्र का जो राज है, उनके दरबार में जलतरंग भी बज रहा है, स्वरमंडल भी बहुत बड़ा हार्प है, वो भी बज रहा है। तो अब वो धीरे धीरे सिमटते हुए, अब देखिए हम लोग यहाँ 4 तार का तानपुरा है, अब वो सिमट के कितने बड़े बॉक्स में आ गया। ये तो स्पीकर भी बड़ा है, स्पीकर में आ गया। आपको स्पीकर भी नहीं चाहिए तो आप अपने मोबाइल पे ही तानपुरा को अपना खोल लीजिए, अकेले भर का ये है कि आप सुन सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट कर करके लोगों ने उन सब चीजों को छुपा भी दिया। अब वो सिंथेसाइजर में आपको सारंगी भी मिल रहा है, फ्लूट भी मिल रहा है, कुछ नहीं, तो वो दूसरे आर्टिस्टों को इनकरेज कैसे करेंगे? But it's sad that we're losing the original. लेकिन इन सब आर्टिस्टों को जीवित रखना ही चाहिए। ऐसे डाइंग इंस्ट्रूमेंट को जीवित रखना चाहिए जो हमारे पौराणिक काल से वो चले आ रहे हैं। अब कितने रिसर्च के बाद में प्यालों में पानी भर के उसको ट्यून करना कितना मुश्किल है। उन सब चीजों को प्रिजर्व करना चाहिए। मैंने हाल ही में सुना था कि काफी लोग उससे मेंटल हेल्थ को काफी अच्छा, मतलब आयुर्वेदिक में यूज हो रहा है, चलता है, हाँ, एज अ थेरेपी। क्योंकि उसके ऊपर 1-1.5 घंटा राग बजाने के बाद उस पानी के अंदर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा तत्व आ जाता है जिसको पिला देने से काफी हीलिंग अच्छे पॉइंट हुए थे। तो कुछ मेरे दोस्त हैं
जो कि बैम्बू म्यूजिशियंस हैं, और वो लोग इस तरीके का काम करते हैं, बट सुनने में आता है कि इंडोनेशिया साइड पे वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बट अगर हमारे देश में भी इस चीज को थोड़ा ध्यान दिया जाए तो डेफिनेटली म्यूजिक से थेरेपी तो थी, और अभी भी थेरेपी चल रही है, म्यूजिक थेरेपी। मुझे तो लगता है उसको बोलने की भी जरूरत नहीं है आपको, इट्स अ थेरेपी, यू डोंट हैव टू कम अप एंड से कि नहीं भाई बिगेस्ट हीलर तो मेंटल हेल्थ के लिए काम कर रहा हूँ किसी से, इट्स ऑब्वियस। एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं म्यूजिक को, एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो म्यूजिक तो देखिए क्या है कि डायरेक्ट कनेक्ट है ऊपरी शक्ति से। तो म्यूजिक जो है उसको करने वाला हमारे ख्याल से क्रिमिनल कभी नहीं हो सकता। मतलब जहाँ तक अभी तक देखने में आया है कि क्राइम की तरफ उसकी रुचि कम हो गई। अब ऐसा हाँ कुछ उसके ऊपर विपत्ति आ जाएगी तो वो भी तो इंसानी है, लेकिन फिर भी जो संगीतकार होता है, आप अभी तक के उसमें हिस्ट्री में देखिए कि कोई क्रिमिनल रिपोर्ट उसके बारे में नहीं सुनने में आया होगा। तो इसीलिए सभी को संगीत से जोड़ना चाहिए। That's an interesting thought. मुझे बड़ा पसंद आता है कि चलो मैं क्रिमिनल नहीं बनूंगा। समय बनाता है, बन के नहीं आता है, हालात समय बनाते हैं। So Rashi, you play a lot of musical instruments, both Western and Indian. How is it that coming from such a pure Indian classical background, you have a flair for both the kinds? And also, do you think in this age of fusion, this has become an asset for you? How do you look at it? First of all, I used instrument like guitar and synthesizer, keyboards for my composition purposes. But मैं professionally कभी as a musician मैंने उनको play नहीं किया। But मेरी रुचि हमेशा से रही अलग-अलग instruments को छूने की, touch करने की, उनके sound से। और शुरू से मतलब आप दोनों पिताजी लोगों ने हमेशा इंस्पायर किया, कभी ऐसे नहीं। एक बार तो मुझे याद है इन्होंने बांसुरी लाके दे दी, शायद कहीं से ऐसे कुछ गिफ्ट हुआ होगा या कुछ ऐसा था, तो आके मुझे दे दिया और बड़े कॉन्फिडेंटली पापा कह रहे हैं कि मुझे पता है तुम बजा लोगे। तो नॉट ऐसे नहीं कि मैं बहुत ही कोई तीसरा था वो बन के सरगम वरगम बजाने लगा, लेकिन हाँ कुछ फिल्मों के गाने में निकालने लगा क्योंकि संगीत आपके अंदर ही है। और ये हमेशा से शुरू से इस बात को हर किसी ने ही जाना है कि कोई भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होगा वो एक अच्छा दवैया भी होना उसका जरूरी है, तभी उसके संगीत जो है उसके एक्सप्रेशंस जो है उसके इंस्ट्रूमेंट से बाहर आते हैं। अच्छा रही बात फ्यूजन की, तो इसको फ्यूजन शब्द को बेचारे को बहुत ही बदनाम कर दिया गया कि हम वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट लेके इंडियन क्लासिकल में या इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट लेके वेस्टर्न म्यूजिक के पीछे बजा लें या गा लें तो ही फ्यूजन कहलाता है। ऐसा नहीं है। अगर मैं एक राजस्थानी इंसान के साथ बैठ के सिर्फ वोकल्स वो राजस्थानी का और मैं शास्त्रीय संगीत का हूँ, ये भी फ्यूजन हो जाता है। इट्स बेसिकली अगर हम देखें इस चीज को समझे तो ये साउंड्स ही हैं जिनकी वजह से हम उसको फ्यूज करते हैं, जैसे कि हमारी नदियां मिल रही होती है, संगम हो रहा होता है, एक किस्म का संगम होता है। तो एड ऑन करने के लिए सिर्फ ये है कि आजकल के अगर हम फ्यूजन के तौर पे बात करें तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिस क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं वो उसने थोड़ा कैनवस और बढ़ा दिया म्यूजिकलिटी को सोचने का। अगर मैं एआई की भी बात करूं तो मुझे लगता है कि तब भी हमारा कैनवस बढ़ता ही जा रहा है। मैं रिस्ट्रेन नहीं करूंगा इन सब चीजों को। तो आप जितना बड़ा अपना कैनवस करना चाहें उस हिसाब से आप अपने इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन को, आप अपने संगीत को उतना बड़ा कर सकते हैं। आज पॉसिबिलिटी है कि वी कैन थिंक बियॉन्ड दैट। हम ये भी सोच सकते हैं कि मार्स पे कैसा साउंड आएगा, उसके साथ में कैसे फ्यूजन म्यूजिक कर सकते हैं। तो इट इज समवेयर डाउन द लाइन वेरी इंपॉर्टेंट विद द रनिंग एज दैट इज गोइंग। Absolutely, new age, all kinds of experiments. There are people playing iPad के ऊपर सारा म्यूजिक कर रहे हैं। That is good. They are doing good. So It is important. it is very important. With your exposure of this canvas that you're talking about, of the unlimited options, which instrument, Indian or Western or any other instrument, do you, in your opinion, best mimics the sound of water or the movement of water?
Yeah, so there are many actually. So people have created this instrument called cane stick. It's a long ट्यूब टाइप ऑफ थिंग और उसके अंदर वो चावल दाल और ये सारी चीजें बहुत सारी चीजें मेटल बॉल्स और बहुत बहुत कुछ इस्तेमाल होता है तो when you turn it it gives the sound of that kind of a flowing water then there are coat nails and shakers जिसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हालांकि मैं बहुत सोचा था कि मैं अपने साथ लेके ट्रैवल करूंगा बट आई कंप्लीटली फॉरगॉट फिलहाल मेरे पास एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है स्वरमंडल जो कि है और ये बहुत ही प्यारा साज है जिथर भी बोलते हैं इसको और इंडियन हार्प भी बोलते हैं बेसिकली हार्प का ही एक फैमिली मेंबर है और इसमें मैंने अभी हमने राग मेघ मिला रखा है तो जरूर आपको बारिशों की धुन सुनाई देगी अच्छा अब मजेदार बात क्या है कि इंस्ट्रूमेंट हो चाहे ना हो लेकिन एक राग एक ट्यून एक मेलोडी एक कितना इम्पोर्टेंस रखता है कि आपको ऑलरेडी वो बारिश महसूस हो जाए तो इसके ऊपर जो राग मेघ मिला हुआ है वो आपको ऑलरेडी बारिश का मूड दे रहा है अब चाहे मैं इस पे बजा लूं चाहे जंतरंग पे बजा लूं चाहे कीबोर्ड पे बजा लूं सिंथेसाइजर पे बजा लूं इसलिए आप लोग हमेशा कहते रहे कि राग कलाकार से बड़ा This is the example. I think music is one of the most beautiful expressions of emotion. Right. और I think इसीलिए पानी और म्यूजिक का एक inseparable kind of bond है. I think हम सभी ने गाने सुने हैं पानी के अराउंड, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, बादल हो और बारिश के तो पता नहीं कितने गाने हैं. तो पंडित जी ऐसा कोई कॉम्पोजिशन है पुराना या नया जो आपके दिल के बहुत करीब हो और पानी से भी कनेक्टेड हो? देखिए दिल के करीब अगर हम 60 साल से गा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बहुत सारे ऐसे बंदिशें हैं बहुत सारे राग ऐसे हैं जो सभी दिल के करीब हैं जब तक आपके दिल के करीब नहीं होंगे तो आप उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते तो अब जैसे मानसून सीजन में हम लोग के यहाँ बहुत सारे राग गाए जाते हैं मियां मल्हार है रामदासी मल्हार है गौड़ मल्हार है मीराबाई की मल्हार है चरजू की मल्हार है मेघ है मेघ मल्हार है सूरदासी मल्हार है तो बहुत सारे राग हैं अब उसमें हर राग का एक अपना कैरेक्टर है हर राग के कैरेक्टर के हिसाब से कंपोजिशन है तो एक सूरदासी मल्हार का आपको बंदिश सुनाता हूँ हमारे दादा गुरु गायनाचार्य पंडित बड़े रामदास जी की रचना है चमकन लागे बिजुरी चमकन लागे बिजुरी चमकन लागे बिजुरी नानी नानी दरिया हाँ नानी नानी दरिया परत फुहार अरे हाँ बिजुरी चमकन लागे बिजुरी कितनी खूबसूरत बात है जो पापा सिखा रहे थे मुझे मैंने कहा कि क्या कितने प्यारे कितने क्यूट इंसान है वो जिन्होंने क्रिएट किया कि वो बूंदरिया का जो नानी नानी और छोटी उस नानी नानी के बाद एक वर्ड आता है हाँ हाँ वो खुद ही को समझा भी रहे कि हाँ ये कितनी क्या प्यारा है एक बार चमकन लागे बिजुरी नानी नानी दरिया नानी नानी दरिया परत फुहार अरे हाँ बिजुरी चमकन
मोरवा बोले कोयल पुकारे श्याम पिया अज हो नहीं आए रामदास मोरा जिया डराए बिजुली चमकर अब इसमें क्या है कि अब आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उस चमकते हुए बिजुली को देखते हुए वो नानी नानी बूंदों को पढ़ते हुए वो फुहार की तरह जैसे फाउंटेन से पानी निकलता है और आप उससे थोड़ी सी दूर पे हैं तो वो फुहार आपके ऊपर पड़ता है। तो इन सब चीजों को जब आप फील करेंगे तब उस तरीके से आप अपने गाने में इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। बहुत ही मतलब इतना mesmerizing and you can almost picture it and you want to just close your eyes and listen to it. अगर वो विजन नहीं बना हाँ। तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। हमेशा अगर हम अंदर अपने बरसात नहीं करेंगे, हम अंदर उस बादल को नहीं देखेंगे, उस बिजली को चमकते हुए नहीं देखेंगे तो हम कैसे गाएंगे? तो इसलिए जो अंतर में देखना शुरू करेगा तब वो बाहर निकल के आ सकता है। लिटरली जैसे लहरें होती हैं पानी के ऊपर, उसी तरह आपकी गायकी में भी ऐसे लहर की तरह आप बहुत तो उस स्मूथनेस तो आना ही चाहिए ना। और हमने पहले ही आपको बोल दिया 75% तो पानी पानी